Nirav ji, a very warm welcome to you for on this momentous occasion of IPO. Many congratulations. Thank you, sir. और Thank you. सर ये इंट्रोडक्शन से पहले हम थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दें। आईपीओ सेंट्रल जो है एक 10 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंडियन आईपीओ मार्केट को कवर करते हैं अच्छे से। डीआरएचपी आरएचपी वगैरह को एनालाइज करके कंपनीज के बारे में अनबायस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे रीडर्स तक पहुंचाने का काम ये वेबसाइट पिछले 10 साल से कर रही है। 10 से थोड़ा ऊपर हो गया एक्चुअली। सो नीरव जी, आज आपका आईपीओ लॉन्च होने वाला है। आज नहीं, मतलब आने वाले दिनों में आपका आईपीओ लॉन्च होने वाला है। थोड़ा इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में बताएं सर। कैसे आपको यहाँ से कैसे ये बिजनेस करने की प्रेरणा मिली, क्या बैकग्राउंड रहा आपका? जी, ओवर टू यू। Yeah, yeah. Thank you so much, Anil ji, for inviting me over here. And I think so, IPO Central doesn't need an introduction. It's been very, very well known in the fraternity of the IPO, and appreciate the way you people have been giving the genuine information to the shareholders. We are also reviewing it. So many compliments to you. Sir, थैंक यू। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो we are from the native place called Drangadra, which is in the state of Gujarat. अहमदाबाद से सर 100 किलोमीटर दूर ये ध्रांगध्रा आता है जहां मैं born और brought up हुआ. My father is a doctor. We are two brothers. I have done B Farm और pharmacy करने के बाद I want to go to US but family ने रोका and that's how I'm in there in India. So उसके बाद I worked in a couple of companies called Troika, Intas, Bayer and Novartis for a couple of years. On 6 December 2004, with 5 lakh rupees of capital, I have started this company called Corona Remedies Private Limited. The word Corona we have coined because we want to give a name around sun. Sun is a source of energy. और सन के नाम से रख रहा था बट इसी नाम की एक कंपनी थी. सो दैट्स हाउ वी हैव गॉन एंड फाइंड आउट अ वर्ड वेरी नियर टू इट. सो कोरोना इज नथिंग बट व्हेन सन राइजेस द ऑरेंज रिंग आउटसाइड द सन इज कॉल्ड कोरोना. और उसी हिसाब से हमने सर 6 दिसंबर 2004 को कंपनी का नाम कोरोना रेवल्यूज प्राइवेट लिमिटेड दिया. मैं इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हूँ. मेरा भाई अंकुर, younger brother, is been joint managing director, and we have a team of people. We have started this journey with 5 lakh rupees of capital, grown in with the internal accrual. In 2013, we have, touched 100 crore mark first time, with hardly EBITDA था उस टाइम पे, क्योंकि जो भी पैसा आता था हम लोग इंटरनल एक्रूअल में लगाते थे. 2016 में जब कंपनी की रेवेन्यू 200 करोड़ की हुई और EBITDA was about 4 crore, private equity called Creador has invested in us, जो मलेशिया बेस्ड साउथ ईस्ट एशिया को फोकस करने वाला प्राइवेट इक्विटी फंड है क्रिएडोर. उन्होंने 605 करोड़ की वैल्यूएशन पे 100 करोड़ का कंपनी में प्राइमरी करा, 100 करोड़ रेस करा. एंड फर्स्ट टाइम हम लोग वेस्ट जोन से बाहर, टिल द 2016 वी वर ओनली इन द वेस्ट जोन. 2016 के बाद हम लोग वेस्ट जोन से पैसा आने के बाद बाहर निकले एंड देन वी हैव गॉन अक्रॉस द नेशन. In 2021, we have about 600 crore revenue and about 100 crore EBITDA. उस टाइम पे Chris Capital has invested in the company at the valuation of 2,500 crore. Today we have about 27.5% Chris Capital and about 72.5% promoter family, put together 100% in this company. We are, sir, basically हमारा जो सेक्टर है तो थेरापीज है. So, we are in the pharmaceutical industry, which is a sunrise. थेरापीज की अगर मैं बात करूं तो हम लोग वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियो मेटाबॉलिक, पेन मैनेजमेंट और यूरोलॉजी, ये 4 सेक्टर में मेजरली काम करते हैं. About 75% of revenue is coming out of these 4 therapies. Today, we are number 1 fastest growing company out of top 30 company in India, out of 1,300-1,400 companies in India. Today, we are number 1 company as far as jumping the rank from 38, 39 to 27, 28. So 8 rank jump in the 3 years of time. We are number 1 company as far as ranking the jump is concerned. We are India focused, India based pharmaceutical company. So our 96.33% business is coming out of India. And now we have filed this IPO. It's 10%, 10.09% OFS.
where Chris is going to dilute about 6.59%, and we are diluting about 3.5% to match 10.09% as the OFS. Company has about 70% plus OCF EBITDA. जनरली फार्मा इंडस्ट्री में केस जनरेट होता है, इसीलिए हम लोग प्राइमरी नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी. सो दिस इज मोर और लेस अबाउट कोरोना. Happy to answer the question, Anil ji, to you, whatever you have. जी सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपकी कंपनी का नाम जो है ना, जैसे आपने बताया कि इसका आपका ऑब्जेक्टिव ये रहा था कि सन से रिलेटेड कुछ रखें. सो सन तो ऑब्वियसली जैसे आपने मेंशन किया पहले से लिया हुआ था नाम. सो जो भी अभी ये नाम है ये काफी मेमोरेबल ऑटोमेटिकली हो गया है. हाँ जी सर. तो ये मेरे ख्याल से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. नेगेटिव पार्ट जो है वो जा चुका है. आई थिंक पॉजिटिव ही रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड. People will be able to remember this thing very clearly. Right, sir. Right, sir. You are bang on it. Yeah. So एक चीज मैं ये पूछ रहा था सर, आपने बताया 2016 में आपका रेवेन्यू 200 करोड़ हुआ, एंड यू स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीस, राइट? 100 करोड़ का कैपिटल आपने कब अचीव किया? 2013 में सर. 2013 में. सो बेसिकली आपने 3 साल में फिर डबल कर लिया रेवेन्यू. हाँ सर. ओके, ऑलराइट, ठीक है. इस आईपीओ के अंदर सर जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज है वो ये है कि फ्रेश कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपका डेट इक्विटी रेशियो भी काफी कम है. लेकिन फिर भी आपको फर्दर ग्रोथ के लिए, क्योंकि मैंने आपका जो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन है वो पढ़ा, तो काफी पॉजिटिव आपने उसमें ग्रोथ के बारे में बात की हुई है. सो एक नेचुरल सी बात आती है दिमाग में कि ग्रोथ मतलब कैपिटल तो लगेगी, बट आप फ्रेश कैपिटल कुछ भी रेज नहीं कर रहे हैं. सो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर. सर मैंने जैसा आपको बताया कि फार्मा इंडस्ट्री में हमारा मतलब कोरोना रेवेन्यूज लिमिटेड का जो उसी EBITDA रेशियो इज अबाउट 70% प्लस. सो सर पैसा जनरेट हो रहा है. ऑन अदर साइड नाउ वी वांट अ विजिबिलिटी अक्रॉस द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. उसके साथ साथ प्राइवेट इक्विटी को एग्जिट भी देना है. सो वी वांट टू डू समथिंग ऑन द एंटरिंग इनटू द कैपिटल मार्केट, IPO मार्केट. जब आपको पैसे की जरूरत नहीं है और आप पैसा बिजनेस से जनरेट कर रहे हो, फिर प्राइमरी रेज करना इज नॉट द राइट थिंग. इट्स नॉट द राइट वे टू टेक द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर विच यू कैन नॉट यूटिलाइज. कंपनी में पैसा जनरेट हो रहा है, जब भी आगे कुछ जरूरत पड़ेगी तो आगे उसको अलग से रेज करेंगे. बट आज सर हमारा पॉजिटिव कैश बैलेंस है. लास्ट ईयर FY25 में भी पॉजिटिव हो गया था, और अगर Q1 के रिजल्ट देखो तब भी वो पॉजिटिव कैश है. इसीलिए हमने सर प्राइमरी रेज नहीं करा है. ओके, ठीक है. आपने मेंशन किया है सर कि आप कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी करने वाले हैं, तो स्ट्रेटेजिक हमने सर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन करे हुए हैं सर. आज फिलहाल हमारे पास दिमाग में अभी कुछ नहीं है. वी आर लुकिंग एट वेरी वेरी एग्रेसिवली, बट अभी कोई मैंडेट हमारे पास नहीं है. हमने सर एक राइट टाइम पे जहां भी हमको लगता है कि हमारे पास गैप है, हमारे यहाँ कोई गैप को फुलफिल करना है, और कोई लीगेसी ब्रांड उसके फिटमेट में है जिसको स्ट्रेटेजिक सेल करना है, तो वी आर बिन देयर. हमने सर एक टाइम पे ग्लेक्सो से थोड़ा पोर्टफोलियो लिया था, ब्रांड्स लिए थे. अबॉट से लिया था हमने, सनोफी अवेंटिस से लिया था. सो वी आर लुकिंग एट दिस थिंग वेरी वेरी एग्रेसिवली. अगर फिटमेंट में है और हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारा गैप फुलफिलमेंट भी हो सकता है, तो वी आर देयर टू टेक इट. हमने सर 2 साल पहले FY23 में सनोफी से मावरिल नाम का एक ब्रांड खरीदा था, जो हमने 225 करोड़ प्लस का एक डील करा था. तब हमने बैंक से लोन भी ली थी, जो 2 साल में हमने भरपाई कर दी, एंड दैट ब्रांड हैज डन वंडरफुली वेल विद अस. सो क्या आपके फिटमेंट में है, क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, वी आर देयर टू एक्वायर द ब्रांड. राइट. और आई थिंक आपने API कंपनी भी कुछ एक्वायर की थी इन द पास्ट. यस सर, आपकी बात बिल्कुल सही है सर. हम लोग, जैसा मैंने आपको बोला, हम लोग वुमेन्स हेल्थ केयर में हमारा बड़ा अच्छा काम होता है. वी आर इन टॉप few companies as far as women healthcare is concerned in the India.
सो सर हमारा वुमेन्स हेल्थ केयर में फीमेल हार्मोन लगता है, और अगर आप फीमेल हार्मोन की बात करो तो मेजरली इट इज बिन अ चाइना डिपेंडेंट बिफोर फ्यू इयर्स। सो जब एक कंपनी गुजरात पालनपुर में स्टार्ट हुई जिसका नाम है लाचंद्रा फार्मा लैब, तो लाचंद्रा फार्मा लैब इज द कंपनी हु हैज स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर हार्मोन, फीमेल हार्मोनल एपीआई, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, फीमेल हार्मोन के केमिकल होता है, वो बनाने का उन्होंने काम चालू करा। It's been in the fitment of our long-term strategy. So Corona Remedies Private Limited has taken a minority stake in Lachandra Pharma Lab, which gives us the comfort as far as backward integration is concerned. And for the forward integration, we have built a plant in Ahmedabad, which will start in another 2-3 quarters. Expenses has already been done, and it is under validation. We'll start that plant for the forward integration. So hormone space एक सर complex generic है. हमारी इंडस्ट्री में सर इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं. Are you in the right industry? So yes, pharmaceutical industry is a sunrise industry, so we are in the right industry. Number 2, are you in the right therapies? So अगर मैं बात करूं तो IPM, Indian pharma market is growing by 8% more or less, and our therapies which I'm talking about, women's healthcare, cardiometabolic, neurology, and pain management is growing by 10%. So you are growing better. Your therapies are growing better than the market. That is the second point of it. उसके साथ साथ सर अगर इस इंडस्ट्री को देखोगे तो 2,32,000 करोड़ की इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है, जिसका अगर 8% से ग्रोथ हो रहा है तो 24,000 करोड़ के आसपास का सालाना ग्रोथ होता है। उसके अंदर अगर आप टॉप 50 कंपनी का कंसोलिडेशन देखोगे सर, टॉप 50 कंपनी का इज अबाउट 79%। सो टोटल जो 24,000 करोड़ के आसपास का जो मार्केट नया बनता है, उसमें से 14,000 15,000 करोड़ का मार्केट टॉप 50 कंपनी में कंसोलिडेट होता है, वेयर वी आर ऑलरेडी बीन प्लेस्ड, वी आर बीन अबाउट 28-29 कंपनी। So you are in the right sector, you are in right therapies, you are positioned well, and ultimately इसके बाद सबसे बड़ा important factor है, that is the execution. मुझे लगता है फार्मा इंडस्ट्री में execution has been 80% important strategy. I don't want to undermine strategy at all, but execution is the key to success, and we have very good execution as per till the time we have done, fairly good execution. So ये सारे पॉइंट हमारे फिटमेंट में थे जब हमने लाचंद्रा फार्मा लैब के अंदर इन्वेस्टमेंट करा था। गोइंग फॉरवर्ड इस इन्वेस्टमेंट को आप इंक्रीज करना चाहेंगे या कोई दूसरी अपनी खुद की बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज जनरेट करना चाहें आप? सर अभी फिलहाल उसके ऊपर कोई हमारी लाचंद्रा के साथ बात नहीं हुई है। We are satisfied and they are running this company very very efficiently. Promoter and the family is been running this company very efficiently. कल जाके उनको उनके लाइफ साइकिल में कुछ सपोर्ट चाहिए होगा और हमारे फिटमेंट में होगा, we will definitely look into it, but as of now there is nothing, no talk is going on as far as increment of the stake is concerned, क्योंकि उससे जब आपका पर्पस सब हो रहा है तो उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बट फिर भी लाइफ साइकिल में लाचंद्रा को जरूरत पड़ेगी और कोरोना के फिटमेंट में होगा तो हम 100% उसके ऊपर सोच करेंगे। ओके, ऑलराइट। सर अभी आपने मेंशन ये भी किया कि क्रिस कैपिटल जो है वो अपना क्रिस कैप अपना इक्विटी स्टेक डाइल्यूट करेंगे वो ओएफएस के थ्रू, कुछ स्टेक आप भी बेच रहे हैं। ओएफएस नेसेसरीली नेगेटिव तो नहीं होता है, लेकिन एक चीज के बारे में हमने बात कर लिया कि कंपनी को फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दूसरा जो कंपोनेंट है, जो दूसरी बात है, वो आती है ओएफएस की। अब ओएफएस में यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर होता है वो कुछ हिस्सा अपना ओएफएस में बेचते हैं आईपीओ में, और उसके बाद में कुछ हिस्सा बल्क डील्स वगैरह के थ्रू वो धीरे धीरे करके ऑफलोड करते हैं। देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ इट कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने काफी कंपनीज के अंदर ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे एक स्टॉक प्राइस में ना ओवरहैंग सा बना रहता है, बिकॉज जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ती है तो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हिस्सा बेचने के लिए कुछ शेयर्स ऑफलोड कर देते हैं, तो मार्केट में सप्लाई आ जाती है, प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये थोड़ा सा एक मैं कहूँ कुछ कंपनीज में तो बहुत ही मतलब अगर मैं ये कहूँ कि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन सा रहा है तो वो गलत नहीं होगा। सो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि अभी गोइंग फॉरवर्ड क्या आप अपने इन्वेस्टर्स को फर्दर एग्जिट होते हुए या शेयर्स ऑफलोड करते हुए देखते हैं? सर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप क्रिस कैपिटल के बारे में अगर आप सर्च कर लो, क्रिस कैपिटल इज दी वेटरन प्राइवेट इक्विटी इन द स्टेट ऑफ इंडिया,
and they have done investment in quite a big boys in the pharmaceutical industry for many years, and they have and take an entry or take an exit in a very professional manner. So if you look at the last pharma big IPO has been on the street before 2-3 years, that is Mankind, where Chris Capital has been there, and they have offloaded their few percentage at the time of IPO and then the later one, right? So more or less क्रिस कैपिटल जैसा प्राइवेट इक्विटी हाउस अगर आपके पास है जो फार्मा चीजों को समझता है, सर, गुड पॉइंट इज today in spite Chris Capital has a chance to offload their stock in a larger way, but they have a full trust and they have conviction on the business that they don't want to dilute much, and they are been 21%, 20 point something percentage, they have still been in the organization. So they will offload, of course, because they are also answerable to their LPs, but they will do it in a very professional manner. As far as promoter is concerned, after this IPO, we will hold about 69%, and there is no plan to offload as far as promoter group is concerned. So on a larger future, it will be about 31% public and 69% promoter. This will be the constitute of the company on a larger, after some time. Perfect, fair enough. हमने ये भी देखा है कि डेट आपकी कंपनी में काफी कम है और मैनेजेबल लेवल्स पे है. इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा और बताएं कि आप जनरली स्पीकिंग डेट को आप कैसे परसीव करते हैं आने वाले टाइम में अगर आप कुछ एक्विजिशंस करते हैं, बिकॉज अभी जो आपके 4 एरियाज हैं उसके बियॉन्ड जाके भी आप अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहेंगे, तो वहां पे आप कितना डेट लेना चाहेंगे, कितना आपको कंफर्टेबल रहता है, राइट? इसके बारे में थोड़ा बताएं. Yeah. So, Anil जी, डेट रेशियो आज कम है, बट इफ यू लुक एट 2 years बिफोर, जब हमने मायोरिल को एक्वायर करा था सनोफी से, तब हमने 234 करोड़ के आसपास की लोन ली थी और तब हमने डेट लिया ही था. अब ये 2 साल में कैश भी जनरेट हुआ और डेट भी फुलफिल हो गया, इसलिए आपको कम दिखता है. मूविंग फॉरवर्ड हमारे दिमाग में एक थिंग है कि हम लोग करंट ईबिटा या करंट प्रॉफिटेबिलिटी के मल्टीप्लाई में 2.5 टाइम्स तक हम लोग डेट ले सकते हैं, जैसा हमारा इंटरनल गाइडलाइन है. हमको उसके बियॉन्ड नहीं जाना, बट ये हम इजीली ईबिटा का मल्टीपल 2.5 तक स्ट्रेच अपने आप को करेंगे. और इसीलिए हमने लार्जर ब्रांड्स, लार्जर पोर्टफोलियोज को देखना चालू भी करा है. हम लोग एग्रेसिवली देख रहे हैं. अगर हमारे फिटमेंट में कुछ हुआ तो वी विल नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ द डेट, बट एट द सेम टाइम we want to maintain the discipline of the finance कि आप वो डेट लो जिससे आपको बिजनेस का स्ट्रेस ना आए. तो 2 साल का अगर आप ईबिटा, करंट ईबिटा के 2 साल के ऊपर अगर आप डेट का एक एप्लीकेशन बनाते हो तो बहुत ज्यादा हमको दिक्कत नहीं लगती. हम वहां तक जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड. राइट. एक क्वेश्चन और आता है सर, जो आपने बताया कि आपकी डोमेस्टिक ऑपरेशंस हैं लार्जली, आई थिंक 96% के करीब आपका बिजनेस जो है इंडिया से आता है. गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट मार्केट्स आप किस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, कैसे आप देखते हैं कि कंपनी इस लाइन में आगे एक्सपेंड करेगी? So, sir, as you rightly said, today we have about 96.33% contribution from the India business, and rest is from the international. As far as India is concerned, sir, we are B2C. But as far as world market is concerned, we want to do B2B. But sir, अब क्या हुआ है? Pharmaceutical scape is but pharmaceutical companies been very competitive landscape में हम काम कर रहे हैं, और हर एक कंट्री को खुद के लिए एक्सपोर्ट कम करना है और मतलब इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है. तो उस जगह पे अगर हमारे पास निश नहीं होगा तो मार्केट करना, मतलब बिजनेस करना मुश्किल है. उसीलिए सर हम लोग हार्मोन का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का हमने ब्लॉक बनाया है. बैकवर्ड इंटीग्रेशन ला चंद्रा की वजह से हमारे पास है, सपोर्ट है. हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा आने वाले 2-3 साल में. हम उस हार्मोनल फीमेल हार्मोन के ब्लॉक से B2B में हम वर्ल्ड मार्केट में एंट्री लेंगे. साथ साथ जो आज का हमारा ब्लॉक है सर, प्रोडक्शन ब्लॉक, इट इज ऑलरेडी, दो वी आर नॉट वर्किंग इन दी मेजरली वर्किंग इन द इंटरनेशनल मार्केट,
but to match the highest quality standard for the India, that plant is also EU GMP approved, already been approved since last two plus years, and we are manufacturing from that plant only to serve the Indian commodity. तो हमारे लिए सर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता कि whether it's the Kochi of India or Kochi of Japan, the quality more or less remains the same. So सर हमने ऑलरेडी मतलब जो भी रेगुलेशंस के हिसाब से अप्रूवल लेना है वो ले लिया है. हम B2B में हार्मोन को एरोहेड करके हम लोग पीछे बाकी की प्रोडक्ट को लेके B2B मार्केट में जाएंगे. बट अनिल जी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारा इंडिया फोकस ज्यादा है, मुझे लगता है कि आने वाले थोड़े सालों में इंडिया कंट्रीब्यूशन विल बी मोर देन 90% and the higher single digit may be coming out of the international business. But at the same time, we are bullish on the international business with complex generic like hormones. Okay. Fair enough. सर थोड़ा सा रिटर्न रेशियोज के बारे में भी बात करना चाहेंगे. आपके रिटर्न रेशियोज पिछले 3 साल में इम्प्रूव हुए हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, और थोड़ा सा अगर आप इसमें जो भी आपके गाइडलाइंस हैं विदाउट मेकिंग एनी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये आप कहां पे स्टेबलाइज होते हुए देख रहे हैं, रिटर्न रेशियोज एज वेल एज एबिटा मार्जिन. देखो सर, हमारा बिजनेस, अगर आप फार्मा बिजनेस देखो ना अनिल जी, आप तो बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज को इवेल्युएट करते होंगे. सबसे सिंपलेस्ट इंडस्ट्री जो मुझे लगता है टू अंडरस्टैंड इज फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया. इन पर्टिकुलरली इफ यू आर वर्किंग इन इंडिया मार्केट, इट्स बीन मच इजी टू अंडरस्टैंड. 4-5 कंपोनेंट है सर. रेवेन्यू है, ग्रॉस मार्जिन है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, एसजीएन है, ईबिटा एंड पैट है. हमारी इंडस्ट्री में सर सिंप्लीफाइड ये होता है कि अगर आपका रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू ग्रोथ होता है, रेवेन्यू ग्रोथ के 3 पैरामीटर है: प्राइस ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ एंड न्यू इंट्रोडक्शन ग्रोथ. सो ये तीनों ग्रोथ लीवर्स को इकट्ठा करते हुए रेवेन्यू ग्रोथ होता है. रेवेन्यू ग्रोथ होने के साथ साथ जैसे ही रेवेन्यू ग्रोथ होता है सर, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट और एसजीएन थोड़ा घटता है, रिजल्टेड आपका ईबिटा और पैट बढ़ता है. हमारे यहाँ एसेट भी लाइट है, 400 करोड़ का खैर प्रोडक्शन ब्लॉक है, बट अगर आप देखो मोटे मोटे तौर पे, अप्रोक्स नंबर बता रहा हूँ, मोटे मोटे तौर पे उतना कैप्टिव, मतलब उतना एसेट, हेवी एसेट और मतलब बिजनेस मॉडल हमारा नहीं है ना, हमारी इंडस्ट्री में जनरली होता है. सो मोर और लेस सर जो रेशियोज पे आज हम बैठे हैं और लगातार उसके अंदर इंप्रूवमेंट इसलिए हो रहा है कि आपका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ता जाता है, बाकी के कॉस्ट कम होते जाते हैं, तो आपके पास ये रेशियोज इंप्रूवाइज हो जाते हैं. डेट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि कल जाके अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लोग ईबिटा इंटू 2.5 तक का डेट लेंगे ही लेंगे. सो मोर और लेस सर स्टेबल सी इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री. आप इतनी इंडस्ट्रीज को पीयर ग्रुप में भी देखोगे तो मोरल प्रेडिक्टेबल बिजनेस की इंडस्ट्रीज में हम हैं, तो बहुत सारा जरा प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ काम कर सकते हो, ये हमारे साथ फॉर्च्यून है. राइट. यहाँ पे फर्दर एक्सपेंशन के तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं. इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज यही है, मैं देख रहा था आपने जो दोनों अपने लिस्टेड पीयर्स मेंशन किए हैं, वो दोनों ही आपसे बड़े हैं, एबट इंडिया एंड एल्केम लैबोरेटरीज. और रिटर्न रेशियोज जो हैं आपके काफी इंप्रूव हैं, लेकिन अभी भी एबट के आपसे थोड़े ज्यादा हैं 33 पे, एल्केम के थोड़े से पीछे हैं. सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सर इसमें जो फर्दर ग्रोथ है वो एक्विजिशंस के थ्रू ही आएगी, बिकॉज आई थिंक आप एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे 1000 करोड़ आप कर चुके हैं. और अभी आपका जो पहले जैसे हमने बताया कि आपने बताया कि एक टाइम फ्रेम था जब आपने 3 साल के अंदर कंपनी का टर्नओवर डबल कर लिया था. अभी पिछले 3 साल को देखें तो वैसा नहीं हुआ है, विच इज नॉट रियली सरप्राइजिंग, बट क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच गए हैं. सो अगेन यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, मैं घूम फिर के आ रहा हूँ एक्विजिशंस पे. सो आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी तो अभी आइडेंटिफाई करना, मैं कहूंगा कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो काफी दूर की बात होगी, लेकिन क्या ऐसी कुछ स्पेशलिटीज हैं आपने कुछ आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पे हम फिटमेंट देखेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा? राइट. सो सर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारा बड़ा बिजनेस दिखता है भी, बट फिर भी हमारा सर 0.7% मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री में, versus number 1 company has 8.23% market share. So, you know, right. Still there is enough room and enough scope as far as organic growth is concerned. Nevertheless, our eyes are always on the
इक्विजिशन राइट फिटमेंट हो तो मैंने आपको बताया, वहां मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत ज्यादा वैल्यू सेंट्रिक इक्विजिशन में काम करते हैं। हम बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड, हमारी पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू एडेड हो सकता है रादर देन द इक्विजिशन की कॉस्ट से कोरोना रेमेडीज के पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू एड हो सकता है, हम उस चीज को देखते हैं। मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूं, ये डीआरएचपी फाइल के बाद हुआ जो आरएफपी में कैप्चर्ड हो गया है सर, कि बायर जाइडस नाम की जो कंपनी है, उनका इनफर्टिलिटी पोर्टफोलियो जो हम लोग, मैंने आपको बताया वुमेन्स हेल्थ केयर में हम बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वुमेन्स हेल्थ केयर में एक इनफर्टिलिटी का भी पोर्टफोलियो होता है जो वही डॉक्टर ट्रीट करते हैं, स्पेशलिस्ट के भी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। उनके लिए लीगेसी पोर्टफोलियो था जो बायर ने, जब बायर इंडिया था तब लॉन्च करा था। वो इनफर्टिलिटी पोर्टफोलियो अभी हमने थोड़े टाइम पहले एक्वायर करा, ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी के साथ, उनके डोजियर के साथ हमने एक्वायर करा। आने वाले टाइम में हम उसको लॉन्च करेंगे सर। सो इक्विजिशन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने कितना रुपया दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उससे क्या वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। सो आवर आईज आर ऑलवेज बीन इनटू द डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो, कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो, और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। We have already been gone and acquired that portfolio, and we have very high hope कि हम उसको लेके एक अच्छा करेंगे, बट वो आने वाला समय बताएगा। सो सर इक्विजिशन हमारी स्ट्रेटजी है ही है और वो रहेगी ही रहेगी। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक, क्योंकि वो गारंटेड होना चाहिए। सो ऑर्गेनिक में भी बहुत जगह है सर, जो मैंने आपको बताया, बिकॉज अ लॉन्ग वे टू गो। परफेक्ट, फेयर इनफ नीरव जी। नीरव जी, मेरे सारे सवाल जो हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सर कीमती समय मैं यहाँ पे दिया। आपके माध्यम से आपके लोगों को ये बताना चाहता हूँ सर, बहुत सिंपल कंपनी है, 2 भाई है फैमिली में, दूसरा कोई बिजनेस में नहीं है, और कोई दूसरी सब्सिडरी से दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। आवर फोकस इज टुवर्ड्स कोरोना रेमेडीज लिमिटेड टू ग्रो एंड ग्रो, and with the corporate governance on the peak, we will try to deliver, as best as possible. Thank you so much, Anil ji. Thanks for spending your valuable time with us. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट नीरव।